Assalamualaikum ji, this is your host Hassan Sheikh. I hope you all are doing well. So today's show is going to be quite different, and we are going to discuss about the fact that how Pakistan is heading and where Pakistan is heading. Why? Because the whole dynamic of the world is changing with the passage of time, and we really need to realize that where are we heading and what are the repercussions of this whole thing that happened in the last few months. So we are going to put light on that, and we are also going to see that how we can bring that positivity into this environment, into this world, into this whole universe by following sustainable development goals and this whole change that is really arising in the whole dynamic. And we are also going to put light on this industrial revolution, the fourth industrial revolution. And apart from that, we are also going to see this whole evolution. We are going to talk about this irtika that is going to be that is really apparent in this world that we are living in the form of this artificial intelligence and many other things. So for that, we are really lucky enough to have Mr. Rizwan Ahmed with us today. He is a very big introduction, by the way. He's a media analyst, consultant, mentor, trainer, speaker, having more than 28 years of experience and in different sectors. He has been awarded Tamgha Imtiyaz and the United Nations Medal for his excellent services and contribution. We are really thankful to you, sir, for bringing this time out for us. Thank you so much. Pleasure. Thank you very much. Rizwan sir, I'm the humbled. only thing that is being discussed nowadays, as I said before, people are really concerned about this whole pandemic situation. They were really concerned in the beginning when it Ought came, to be. and now with the passage of time, people realize that we need to accept it because this is what is something that has Yeah. come up to us, and now we have to accept it. हमें इसको accept करना है, हमें इसके साथ लेके चलना है. Yeah. Unemployment का डर था, खौफ था, fear था. People were really pessimistic. There was no optimism. There was no positivity. But now things are like improve होती भी दिखाई दे रही है. Definitely people face losses and all and everything. Entrepreneurship बड़ा affect हुआ, job का हमारा sector बड़ा affect हुआ. There was a lot of things. So sir, having said that all, अब पाकिस्तान में क्या होने वाला है या दुनिया के अंदर अभी क्या होने वाला है अल्लाह बेहतर जानता है. लेकिन according to your experiences, according to your expertise, आप कैसा देखते हैं इस वक्त फ्यूचर कि what is going to happen? What do you say? क्योंकि people are very much concerned. हर आदमी इस वक्त यही कह रहा है कि 2020 जो है, it has been a disaster. It has been very difficult for us. Now, what is going to happen in 2021? That is what is something very important. क्या कहेंगे? Okay, thank you very much. आपने बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ों को रैप अप किया अपने क्वेश्चन में, तो मैं इसको जो क्विकली जो मुझे इस पे जो एकदम जो इस पे जो रिस्पॉन्स है मेरा, उसमें तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि द होल वर्ल्ड हैज़ सफर्ड एज यू सेड इट, and this suffering has it is in billions as far as जिसके economic losses हैं, billions and trillions पे हैं, इसके जो social losses हैं, deaths हैं, और उसके बाद जो domestic violence की increase है, जो joblessness है, तो वो भी जो है एक phenomenal है. Global जो poverty से नीचे की जो line थी, अगर उसमें X number of लोग थे, तो उसमें वो X plus हो चुके हैं. So इस severe हालात में तो ये एक and nobody, it is unprecedented and no one ever thought about it, और इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं थी, और उसके बाद ये हुआ है. और जो GDPs की ग्रोथ है वो बहुत सिवियर नेगेटिव में जा चुकी है फॉर इंटायर 2020. तो ये तो मैं आप ही की बातों को रिपीट कह रहा हूँ, तो ये तो कुछ हो गया. बट हैविंग सेड दैट, मूविंग फॉरवर्ड दो चीज़ें हैं. नंबर वन इज द चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. समबडी सेड इट एंड आई ऑलवेज कोट इट, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. चेंज आती है. और आपने ये देखा होगा कि लोगों ने, जैसे आपने अगेन यू योरसेल्फ मेंशन्ड इट, कि इसको एक्सेप्ट भी किया और इसके साथ फिर उन्होंने ज़िंदगी को गुजारना भी सीखा, जिसमें वन ऑफ द जो टेक अवेज है वो ये है कि वर्क फ्रॉम होम जो था वो कभी इस तरीके से नहीं समझा गया था कि वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है, बट पीपल लर्न इट कि यस इट इज़ वर्चुअल, इट इज़ एक्चुअली पॉसिबल. उसके बाद जो एक ऑनलाइन और रिटेल और एक डिजिटल एक फिनोमिनल, उसके अंदर भी जो डिसरप्शन आई है, उसके अंदर डिजिटल ग्रोथ आई है. मतलब वेयर इज द वर्ल्ड वाज गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, लेकिन डिजिटल, ये हम उससे लिंक कर रहे हैं कि वेयर द वर्ल्ड इज एक्चुअली हेडिंग. तो डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो डिजिटल ट्रेड, ई कॉमर्स थी, अगर उस पर देखा जाए, और जो सोशल मीडिया पे देखा जाए और नेटफ्लिक्स पे देखा जाए, तो इसकी जो ग्रोथ थी वो अगेन फिनोमिनल रही. रेस्ट एवरीथिंग वाज गोइंग डाउन बट दे वर ऑन द राइजिंग. वेरी ट्रू. तो हैविंग सेड इट के लोगों ने चेंज एक्सेप्ट भी किया और उसको मीट भी कह रहे हैं और आगे भी चल रहे हैं. लेकिन अगर इसको लिंक अप किया जाए तो 2020 तो बहुत सिवियर नेगेटिव है अक्रॉस बोर्ड पूरे कंप्लीट प्लैनेट में. लेकिन
आज जिस तरह आपने पूछा तो अगेन 2021 एंड ऑनवर्ड्स होता ये है कि एट द एंड ऑफ द डे ना, जब आप बिल्कुल कंप्रेस कर देते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसने दोबारा से पुल आउट होना है। तो मतलब एक वर्स सिनेरियोज जो बिल्ट होने थे वो तो हो गए, जो कॉस्ट पे करनी थी हो गई। अब इसके बाद इसने दोबारा जो है वो एस्केलेट ही करना है, स्केल करना है, पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। और जितनी भी ग्लोबल प्रोजेक्शंस हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस और लोकल हमारे स्टेट बैंक, जहाँ जहाँ से भी GDP की फोरकास्ट आ रहे हैं, और रिलेटिव पर्सपेक्टिव में 2021 ऑनवर्ड जो है वो पॉजिटिव की तरफ है। सर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कोविड-19, हमने पहले इसकी बात की, अभी जैसे आपने पूरी बात को एक्सप्लेन किया। हम बात करते हैं चेंजेस की या बेहतरी की। हम कोविड से पहले भी यही कोशिश की जा रही थी दुनिया भर में कि वी हैव टू ब्रिंग सम पॉजिटिविटी इन द फॉर्म ऑफ, हम जब सस्टेनेबल ग्रोथ डेवलपमेंट के गोल्स की बात करते हैं तो उसमें भी यही चीज़ जो थी वो, उसके अंदर 17 जो पॉइंट्स हैं उसके गोल्स हैं, उसमें पॉवर्टी की बात हो रही थी, उसके अंदर पानी की बात हो रही थी, उसमें जो है वो एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही थी, उसमें जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही थी। हाउ डू यू सी दिस नाउ सर? बिकॉज आप ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं क्योंकि कोविड के बाद तो सिचुएशन और ख़राब हुई। पॉवर्टी मेरे ख्याल है 2030 तक का एक टारगेट था कि विल बी फाइन। तो उसको पहले आप कैसे देखते हैं और पाकिस्तान के डायनेमिक्स में उसकी कैसे इम्प्लीमेंटेशन दिखती है या नहीं दिखती है? सबसे बड़ी बात तो ये है। In fact, your question is brilliant and your question is bit loaded also. और उसमें यही है कि for the first thing इसके थोड़ा sustainable development goals को भी explain कर लेते हैं। तो बात यही है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में काम कर रही है, पाकिस्तान इज अदरवाइज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज जिसमें चैरिटी का बहुत बड़ा एक रोल है। ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। तो पाकिस्तान में तो वैसी चैरिटी और नॉट फॉर प्रॉफिट और इस तरह की चीज़ें बहुत आम है और बहुत होते हैं। 2-4 नाम भी लिए थे, एधी वेलफेयर है, चीपा वेलफेयर है, इंडस हॉस्पिटल है, सिलानी ट्रस्ट है, TCF है। तो यू नेम आई थिंक आपको हर राउंड अबाउट के बाद अलखिदमत फाउंडेशन है, किरण फाउंडेशन है, दिस एक सीरीज अमन फाउंडेशन है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो एक तो बहुत काम हो रहा है, लेकिन उस काम होने के कामों के बावजूद भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के चूंकि हम उसके साथ लिंक्ड अप है, उसमें बहुत सारे 17 गोल्स की हमने प्रायोरिटी गोल्स जो हैं 2015 में यूनाइटेड नेशंस की डिक्लेरेशंस में उन्होंने एक 17 गोल्स की प्रायोरिटी सेट कर दी, ग्लोबल प्रायोरिटी। ठीक है। और ग्लोबल प्रायोरिटी को सेट करने के लिए उससे भी जो पहले उसका बेसिक्स है वो ये है कि उनके पास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे जो उन्होंने 2000 में फिक्स किए थे, जो कि उन्होंने अचीव करने थे 2015 में ग्लोबली यूनाइटेड नेशंस में। तो जो भी इंडिकेटर्स थे उसमें वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के जो नेक्स्ट 15 ईयर्स में, तो सम और दी अदर दे कुड नॉट अचीव देम। अब वो फॉर एग्जांपल वो 33% से कोई रह गए, 44% से रह गए, कोई 50% से रह गए। जो भी उन्होंने टारगेट्स KPIs जो एक बेंचमार्क इंडिकेटर सेट किए थे डिफरेंट डायमेंशंस में, तो दे कुड नॉट अचीव देम। तो उसके बाद फिर उसकी रीअप्रेजल आप समझ लीजिए किया गया, उसकी दोबारा परफॉर्मेंस अप्रेजल करके या उनकी रीस्केड्यूलिंग करके या उनकी रीसेटिंग करके। तो 2015 ऑनवर्ड्स दुनिया के लिए यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से 17 गोल्स आइडेंटिफाई करके और वो राइज कर दिए कि उसके ऊपर अब उसको मेंटेन करने के, उनको अचीव करने के लिए काम हो रहा है। यू ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो है वो पॉवर्टी एलिवेशन है, दूसरा जो है वो फूड है, हंगर है, थर्ड जो है वो उसके अंदर जो हेल्थ केयर है, चौथा एजुकेशन है, फिर वुमेन एम्पावरमेंट है, फिर ऐसे करते करते नीचे चले जाते हैं तो लाइफ ऑन प्लैनेट है, लाइफ ऑन नीचे सब सरफेस है, पानी के नीचे है, अर्बन सिटीज़ हैं। तो वो खैर कंप्लीट 17 है। तो पॉइंट ये कि उसके साथ उन्होंने ग्लोबल प्रायोरिटीज फिक्स कर दी और जैसा आप खुद कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी उसको अचीव करना वो एक टास्क था, एक बहुत बड़ा मेगा टास्क था। और चूंकि ये कोविड का अगेन बीच में आ गया है तो वो उससे टास्क जो है वो फर्दर, मेरे पास कुछ स्टैट्स हैं, मैं उसको भी अगर डिस्कशन के दरमियान में हम यहाँ से उसको शेयर कर लेंगे, ले आएंगे। माय पॉइंट इज के यस, तो एक तो वो ऑलरेडी अचीव मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स भी शॉर्ट ऑफ रह गए माइलस्टोन। फिर जब ये 2015 से इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लेकर आए, इनको 230 तक अचीव करना था, तो वो भी ऑन ट्रैक एज सच जो थे वो अभी स्ट्रगलिंग फेज में थे कि ऊपर से कोविड आ गया। तो ये तो एक फैक्ट हो गया। बट ऑन दी अदर हैंड कहने का मकसद ये है कि मंजिल कितनी मुश्किल हो आपने एफर्ट करनी होती है। तो इसमें जो मेरा अपना पर्सनल जो इनपुट है, जो मैं इसको लिंक ये करूंगा कि जैसे हमने पहले बात की कि बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हमारे पास काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं ना सोशल वेलफेयर में, सोशल डेवलपमेंट में, लोगों की फलाह के लिए भी, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इवन दे आर नॉट अवेयर ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो उसमें कहते हैं ना कि डोंट री इन्वेंट द व्हील। अब वो जो डोंट री इन्वेंट द व्हील है कि अगर सारी एफर्ट ग्लोबली और तमाम लोग और तमाम CSR और तमाम नॉट फॉर प्रॉफिट और तमाम फलाई इदारे अगर वो अपने जब वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करें
हाँ। अपने टॉप के हमने क्या करना है, जी। और उनको अलाइन करें, उनको फीड करें, उनको मिल के ना एक फोकस, एक टारगेट पे मिल के एफर्ट हो, तो बजाय इसके सैलोज में एफर्ट हो, डिसजॉइंटेड एफर्ट हो, तो सिनर्जी नहीं क्रिएट होगी। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आज आपकी इस डिस्कशन से मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी एक सिनर्जी क्रिएट करने की, एक इंटीग्रेशन क्रिएट करने की, एक टीम बिल्डिंग जनरेट करने की, क्योंकि उससे हो ये रहा है कि डुप्लिसिटी भी है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स भी है। और मैं उसका एक बड़ा एक एनालॉजी के तौर पे एक फ्रेज यूज़ करता होता हूँ कि मैं आई बीट टू द छोर। मैं 2 साल वहाँ पे फिजिकली ऑपरेट कर चुका हूँ बैक इन 96-97 में, एंड आई लॉट मैनी थिंग्स वहाँ पे हमने की थी। तो उससे लेकर के अब तक जो है ना, छोर के अंदर मुझे पता है कि देयर इज अ वाटर क्राइसिस, पानी का इशू है वहाँ पे, फ्रेश वाटर इज नॉट अवेलेबल हाइजीन के लिए, सैनिटेशन के लिए, जिंदा रहने के लिए, एंड सिंस देन टिल टुडे एवरीबडी इज मेकिंग एन एफर्ट। तो वो पानी का जो मसला है छोर के लोगों के लिए, जो है ना, थर के लोगों के लिए, वो थर में अभी तक उसका मसला हल नहीं हुआ। मतलब हर कोई वहाँ पानी पिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन थर की प्यास नहीं बुझी है। बिल्कुल राइट। सर ये एक बात मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा यहाँ पे कि ग्लोबली हम अगर देखें, ये थोड़ा सा इससे हटके है सवाल, ग्लोबली अगर हम देखें तो थिंग्स आर गेटिंग वर्स इन दिस मेन पर्सपेक्टिव तो है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मुस्लिम्स के साथ, मुसलमानों के साथ अगर हम देखें ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सिचुएशन हैज़ बिन क्वाइट डिफरेंट एंड इट हैज़ बिन वेरी डिफ़िकल्ट मुस्लिम्स के लिए, ख़ासतौर पर मुसलमानों के लिए। मैं इससे हट के बात कर रहा हूँ अभी। तो उसमें मैं ये सवाल ज़रूर करूँगा कि मुस्लिम्स को अगर हम देखें, मुसलमानों के साथ बड़ा ग्लोबली देखें कि एक अलग किस्म का एक बर्ताव भी रहा है, तो क्या हमने ये सुना, जैसे कोविड आया तो ये सुनने में आया कि जी वो दिस इज़ गोइंग टू बी अनदर वॉर, दिस इज़ गोइंग टू बी अनदर फॉर्म ऑफ वॉर। अब वो एक फिजिकल वॉर नहीं है, वो एक बायोलॉजिकल वॉर हो गई है। जैसे भी आपने उसकी भी चिप्स की भी बात की कि चिप्स पे आपने ये बात कही कि देखें टेक्नोलॉजी जो है वो जब भी आई है, बहुत वैलिड जवाब है वो, कि वो तो उसके बारे में यही कहा गया कि भाई ये तो भी नहीं ऐसा नहीं होगा। आपने हाइब्रिड की एग्जांपल दी। तो इसी तरीके से जब ये सिचुएशन, सर इसको आप कैसे देखते हैं? यानी इफ़ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन कि क्या ये कोई वॉर है जो शुरू हुई है या शुरू की गई है या शुरू की गई थी, या इज इट लाइक इट नीडेड टू हैपन, या होना था कोरोना की सूरत में जो आया? इसको आप कैसे देखते हैं सर अपने? देखिए, पहली बात तो ये कि कोरोना ने खाली मुसलमानों को तो अफेक्ट नहीं किया। एग्जैक्टली, पूरी दुनिया में सबको अफेक्ट किया। कोरोना में तो कोई ना मुसलमान है, ना कोई मजहब है, ना कोई रीजन है, ना कोई बाउंड्रीज है। दैट्स अगेन एक अच्छा इसका राइडर क्लॉज है कि, और बल्कि रादर इससे जो डेवलप्ड इकोनॉमीज को और जो वेस्टर्न इकोनॉमीज थी या वेस्टर्न जो ममालिक थे, डेवलप्ड वर्ल्ड जो था, उसको सब अफेक्ट हुए। बिल्कुल ठीक है, उसको ज्यादा अफेक्ट किया रादर। तो यहाँ से तो मुस्लिम फैक्टर बिल्कुल सही है। अब अगर हम ओवरऑल जो, अगर कोई किसी को फ़लस्तीन याद आ रहा है, हाँ, या मैं किसी को, हाँ, अगर किसी को कश्मीर याद आ रहा है, या किसी को अफगानिस्तान याद आ रहा है, या किसी को तालिबान याद आ रहे हैं, या किसी को पाकिस्तान याद आ रहा है, या किसी को इस तरह का कोई सूरत हाल याद आ रही है, देखिए जी, बात यह है कि बहुत आसान से एक इसका वन वर्ड है कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता ना जिसको ख्याल हो अपनी हालत के बदलने का। ठीक है। तो मुसलमानों को जो है ना, मतलब मौले नु मौला ना मारे ना तो मौला नहीं मरदा वाली बात है। मुसलमानों को कोई और ना मारे ना तो ये हम आपस में ना मारे ना तो हमें कोई नहीं मार सकता। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुसलमानों के इस वक्त जो सूरत हाल लेटेस्ट है कि, और ये तो शिकवा जवाबी शिकवा में अल्लामा इकबाल बहुत पहले क्या कहते, वो पढ़ लें तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि ये मतलब किस तरह के मुसलमान है ये। तो सिर्फ नाम का मुसलमान होने से अगर कोई कहे कि यार मैं फिर वो हूँ, तो ये वाली बात तो नहीं है। ठीक है, बाकी ये है कि दुनिया में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हमेशा से है, इंटरेस्ट की गेम है, और डे वन से है, और डे तो इसको हम वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं? इसको देखिए, वर्ल्ड वॉर तो हो चुकी है, और वर्ल्ड वॉर 1 भी हो चुकी है, 2 भी हो चुकी है, और 3 भी हो चुकी है, और 3 होने वाली होगी। तो वर्ल्ड वॉर्स हो जाएंगी, लेकिन वर्ल्ड वॉर का मतलब ये है कि वर्ल्ड वॉर जो है ना, वो फिजिकल वॉर्स जो है ना, वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट डायमेंशन लेके वर्ल्ड वॉर चुके हैं। अगर आप लोडेड क्वेश्चंस पे उसको जबरदस्ती फिक्स करेंगे उसके साथ, तो वर्ल्ड वॉर का ये है कि अब जो दौर है, तो हाइब्रिड वॉर की आजकल वैसे ही बड़ी बातें चल रही हैं, वो हमारे उसमें भी तो कहेंगे अब जो वॉर है ना, प्रॉक्सी वॉर, हाइब्रिड वॉर, 5th जनरेशन वॉरफेयर, कम्युनिकेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, दिस वॉरफेयर, दैट वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, तो वो ऑलरेडी दे आर ऑन, they are on social media itself, digital media itself, information itself, cyber itself, that war is on। तो फिजिकली इस वक्त जाके आपने अपनी फौजें उतार के किसी को कैप्चर नहीं करना, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल, ये हर तरह की वॉर प्रोपेगेंडा ये हो रही है ताकि एट द एंड ऑफ दिस वॉर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी, वॉर इटसेल्फ इज नॉट अ पॉलिसी। सही, ये क्लॉजविट्स कह गया था। तो कहने का मतलब पॉलिसी क्या है? पॉलिसी जो है ना, वो आपने अपनी रूल, अपने हेगेमनी, अपने कंट्रोल, दुनिया के कंट्रोल को, एसेट्स को, वेल्थ को, उसको पावर को कंट्रोल करना है, सस्टेन करना है। तो वो ऑलरेडी है, वो चल रहा है, वो कंटिन्यूस है। पहले वो मुसलमानों वाला पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। तो उसमें ये है, देखिए मुसलमानों का, मैं चूंकि आपके शो से वही बिल्कुल देसी थड़े वाली लैंग्वेज में बात करके इसको करते हैं, चाय के होटल पे बैठ जाते हैं। देखिए मुसलमानों ने
मैं रात भी मैं ये कोट कर रहा था, ये बड़ा अच्छा वो है कि मैं अक्सर फिर वहाँ बैठ कर मैं कहता हूँ भाई आजकल ये जो चल रहा है ना सारा सिस्टम, ये सीरी वीरी चल रहा है और ये जो व्हाट्सअप चल रहा है और ये एप्पल चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, ये पीछे कंप्यूटर की इसकी एल्गोरिथम्स चल रही हैं। कोडिंग जो होती है ना, सिंपल एल्गोरिथम इतना तो हमें पता है ना, गूगल फटाफट हम एक चीज डालते हैं तो ठक करके हमें वो 1 मिलियन दे देता है, करीम की गाड़ी आ जाती है, नेटवर्क आ जाता है, सैटेलाइट का मैप आ जाता है। तो ये चल रही है एल्गोरिथम्स पे कोडिंग जो है एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम्स जो है ना, जो डिजिटल डाटा वो निकाल के लाके देती हैं, तो एल्गोरिथम जो वर्ड है, ये वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है, ये कहाँ से आया है, ये लफ्ज क्या है, ये लफ्ज है अल-ख्वारिज़मी। अच्छा, algorithm is al-Khwarizmi. Who was al-Khwarizmi? Al-Khwarizmi was a Muslim scientist. वो मुसलमान साइंसदान था, मुसलमान मैथमेटिशियन था। सही है। और सन 1200 में, तो या जब भी उसका पीरियड निकलता है, मैं प्लस माइनस कर जाऊँ तो वो कोर्ट पे मुझे वो ना हो कि मैं ही वाज वन ऑफ, जब मुसलमानों का दुनिया में उरूज था, सही, जब मुसलमानों ने दुनिया को लिखना पढ़ना बोलना, आखिरी जो लास्ट हमारा जो उरूज था, जिस पे स्पेन होता था, अंदलूसिया होता था, हम अर्तुगरुल तो देख रहे हैं, अर्तुगरुल का हमें वो हीरो हीरोइन सब याद हैं, लेकिन उससे जो मुसलमानों की ओवरऑल हिस्ट्री थी, अगर उसको भी कोई थोड़ा सा पढ़ ले, तो मुसलमानों ने दुनिया को रूल किया और आज जो कुछ है ये मुसलमानों को दिया हुआ है, राइट सर। सो सिर्फ मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब लिंक करता हूँ तो ये इसकी जो मैथमेटिकल जो इसकी जो जार्गन है और जो ये सीक्वेंसिंग है, ये बेस करती है इन द नेम ऑफ द जेंटलमैन हुज नेम वाज अल-ख्वारिज़मी, हु वाज अ मैथमेटिशियन एंड ही वाज फ्रॉम अफगानिस्तान। तो यानी कि आज से 600 साल पहले या 800 साल पहले या 900 साल पहले या 1000 साल पहले एक पीरियड ऐसा था कि उस 1000 साल पहले क्या टेक्नोलॉजी, कौन से मुसलमान किन पहाड़ों में और कैसे इलाकों में बैठ के, इराक में, ईरान में, टर्की में, स्पेन में, दीज वर द एरियाज, अरब में, अफगानिस्तान में, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जो दे गए, जो कि उसके ऊपर बेस करके आपकी टोटल जो मेडिकल साइंसेज है ना सर, उसमें इब्ने सीना को जरा गूगल कर लें, ढूंढ लें, तो इब्ने सीना के ऊपर बेस करके जो आज भी आपकी मेडिकल साइंस बेस कर रही है, वो इब्ने सीना ने दिया हुआ था। इब्ने सीना वाज अ मुसलमान साइंटिस्ट। सो चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे फिजिक्स हो, ये सब कुछ, तो कहने का मतलब मुसलमान जब मेहनत कर रहे थे, जब पढ़ लिख रहे थे, जब एफर्ट कर रहे थे, अच्छी तवज्जो दिलाई आपने, बिल्कुल सही है। तो उनके लिखे हुए नुस्खे जो हैं वो हर जगह है, वो हर जगह झलक दिख रही है उसकी, तो आज तक है। आर्किटेक्ट में मैं चले और एक बिल्कुल आपको एक बात आपने की है कि चाय के होटल वाली मिसाल देते हैं, किसी प्रॉपर्टी वाले से पूछे ना डिफेंस का बंगला आपको बेचना आएगा ना, तो वो कहेगा जी ये कौन सा बंगला है, स्पेनिश बंगला है, ये स्पेनिश बैंगलो है। अब अखबार में देखें ऐड लगा होता है स्पेनिश बैंगलो, अगर नॉर्मल जो है ना बंगला 32 करोड़ का है ना, स्पेनिश बैंगलो 52 करोड़ का। अब उसे पूछे भाई स्पेनिश बैंगलो 52 करोड़ का क्यों है, कहते स्पेनिश है। उसमें स्पेनिश क्या है, स्पेनिश है। भाई स्पेनिश से क्या बनता है ये नहीं पता। स्पेनिश से ये बनता है कि ये स्पेनिश वो आर्किटेक्चर है जो कुर्तुबा की मस्जिद है ना, कोर्डोबा, जिसको हम कोर्डोबा कहते हैं, उस वक्त कुर्तुबा था, और कुर्तुबा की मस्जिद और मस्जिद का जो आर्किटेक्ट है अल-कज़ार ऑफ सिविल है, जहाँ पे अल-कसर से अल-कज़ार जो वर्ल्ड में जब वो गया, तो वहाँ जो उन्होंने जो आर्किटेक्चर मुसलमान जो छोड़ कर आए या जिस लेवल पे उन्होंने पहुंचा दिया था, अब वो आर्किटेक्चर जो है वो घरों के अंदर यानी कि घूम फिर के पूरे वर्ल्ड में इस तरीके से गया है कि स्पेनिश बैंगलो या स्पेनिश आर्किटेक्चर जो है इट इज कंसिडर्ड एज एन स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चर फॉर अ बैंगलो। लेकिन फिर रिजवान साहब ये क्यों होता है, हम तो ये सुनते हैं कि अभी जैसे मैं परसों ही एक प्रोग्राम कर रहा था, तो उसमें मुझे एक बात ये सुनने को मिली कि जैसे मुगलिया दौर जब आया तो जी उस टाइम पे लाइब्रेरीज़ नहीं बनाई हमने, या हमने कोई दूसरे डेवलपमेंटल काम इस तरीके के नहीं किए, वरना हम और आगे होते। तो एक तरफ तो ये भी है, जैसे आपने बात बताई कितनी पॉजिटिव काम भी तो वो मुगलिया दौर उसके बाद ही है ना, मतलब वो जो हमारा जो एपिक था ना मुसलमानों का वर्ल्ड में, जो हमने इल्म दिया था, वो इल्म से रिलेटेड था। सही है। वो नॉलेज से रिलेटेड था, वो बुक्स से रिलेटेड था, वो किताबों से रिलेटेड था। हाँ जी। जब चंगेज़ खान, हलाकू खान वगैरह ने इराक वगैरह पे हमला किया है मुसलमानों के ऊपर, वहाँ से वो आया, जब उसने कॉन्कर किया है, उसको एग्जैक्ट एरिया, उसकी वही पीरियड टाइमलाइन देख लेंगे, अगेन उसी पीरियड पे जाता है ये 1200 में। और उसने मुसलमानों की लाइब्रेरीज़ को जो है वो इल्म को, किताबों को जो है वो बर्न करके, और फिर उसके बाद दरिया में जो दजला और फिरात के जो दरिया हैं इराक में, उसमें बहाया था। तो बकौल हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि मतलब जो दरिया का जो पानी था वो स्याही से, इल्म की स्याही से जो है उसका रंग बदल गया था, काला हो गया था। तो सोचें कि क्या इल्म होगा, क्या स्याही होगी, क्या किताबें होंगी और कितना इल्म होगा। तो वो जो इल्म था और जो बुक्स थी और जो नॉलेज जो आपने सीख करनी थी कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े,
तो नॉलेज और बुक्स और लाइब्रेरी और इल्म इंफॉर्मेशन, दैट्स द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। इस तो मतलब हर और एक वो में डाउनफॉल आया उसके बाद। वो तो फिर उसके बाद सेवियर डाउनफॉल है ना, फिर डाउनफॉल ही डाउनफॉल है भाई। उसका डाउनफॉल का मतलब ये है ना कि मतलब चले आप इस तरह देख लेना, आपकी जो मतलब फॉर एग्जांपल कि हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज दैट यू हैव इन इजराइल एंड हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज दैट यू हैव ओवर हियर and how many scholars that you have, those who get the scientific Nobel Prize in Japan, in Israel, in Netherlands, in Denmark, छोटी छोटी फिनलैंड, आइसलैंड, यूरोप की कंट्रीज में, और how many scientists जो है वो यहाँ से निकल के जाके नोबेल प्राइज दुनिया में ले रहे होते हैं। बिल्कुल सही। और यहाँ का टोटल आपका एजुकेशन का बजट अगर आप ले लें और किसी डेवलप वर्ल्ड की, किसी कनाडा की एक यूनिवर्सिटी का एक बजट ले लें, इंग्लैंड की किसी आईवी लीग रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटी का बजट ले लें, तो उनकी एक यूनिवर्सिटी का बजट आपके पूरे हायर एजुकेशन कमीशन की कंप्लीट एजुकेशन के बजट के बराबर होगा। तो इट्स ऑल इनपुट वर्सेस आउटपुट। तो पढ़ने लिखने का थोड़ा बहुत रुझान अगर था भी लाइब्रेरीज का, तो फर्दर जो है वो जो कि पॉइंट आपने रेज कर दिया, तो आई मस्ट ब्रिंग इट ऑन रिकॉर्ड कि उसका डिजिटल एज के बाद तो बिल्कुल अब तो स्किमिंग पे चलेंगे अब तो मतलब। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे, बुक्स लाइब्रेरीज पे नहीं जाएंगे, नॉलेज को सीख नहीं करेंगे, खाली ये जो है वो स्पीड और जो स्किमिंग वाली और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी वाली और फेसबुक और विकिपीडिया पे चलेंगे, तो आप समझ लें आपको फिर वो किसी माइक्रोचिप की भी जरूरत नहीं है ज़ॉम्बी बनने के लिए। दिस इन्फॉर्मेशन जो आपको स्केची जो डिजिटल मीडिया से व्हाट्सएप से आ रही है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो लोग आ रही है, आपको पीएचडी करा रही है आजकल हर बच्चा व्हाट्सएप पे, हर बच्चा हर खातून जो है ना व्हाट्सएप के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं और उसके वो वायरल्स को जो है ना फास्ट फॉरवर्ड करने में लगे हुए। तो उससे जो इन्फॉर्मेशन लेके अगर जो जनरेशन बड़ी होगी तो इसको तो किसी चिप की जरूरत भी नहीं है, वैसी ज़ॉम्बी हो जाएगी। रिजवान साहब, गेटिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, एक बात यहाँ बड़ी अहम अब आती है कि जब इतना कुछ चल रहा है और इतना कुछ दुनिया भर में चल रहा है और पाकिस्तान में भी वही आपने कहा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, एंड वी मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन। तो रिजवान साहब, सी पैक की फिर हमें एक सुनाई देता है कि हाँ भाई ये एक शायद पॉजिटिविटी का नाम हो, यहाँ से शायद जो है वो कुछ पाकिस्तान का मज़ीद अच्छा मुस्तकबिल दिखे। चलें, तो ये एक तो इस पर आपकी क्या राय है, पहली बात। और इसी से एक और बात जोड़ूंगा कि वहाँ पे भी नेगेटिव सोच थोड़ी सी मिलती है और लोग कहते हैं कि नहीं भाई अभी जैसे एम्प्लॉयमेंट है और अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, बल्कि हमने तो इस पर एक प्रोग्राम भी पूरा किया है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके भी व्यूज़ जानूँ इस पर। देखिए जी, पहली बात तो ये कि सीपैक को भी आइसोलेशन में देखना जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये भी मायोपिया है, ये बहुत मायोपिक शॉर्ट साइटेड है। सीपैक इज नॉट सीपैक, सीपैक इज पार्ट ऑफ BRI, ब्रिज एंड रोड इनिशिएटिव, राइट। और ब्रिज एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये लेटेस्ट नेम है, इससे पहले इसका नाम था वन बेल्ट वन रोड। और चाइना के जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं जो शी जिनपिंग, जो अक्सर उनका नाम जो मिक्स कर जाता है, करंट प्रीमियर लीडरशिप ऑफ द चाइना, उनका एक विजन के मुताबिक उन्होंने 2012-13 के अंदर ये वन बेल्ट वन रोड का जो पूरा एक दुनिया में एक ट्रांसलेट किया था, एक नेटवर्क ऑफ ब्रिजेस एंड रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के जिससे कनेक्ट किया जाए। और उसका जो कंप्लीट उसका जो स्कोप है, आउटलुक है, वो ऐसा है कि इट रन्स अराउंड 6 to 8 ट्रिलियन डॉलर्स। इंडिया की इकॉनमी 3.5 डॉलर्स के होता है, इंडिया की इकॉनमी को आप डबल कर लें, दैट्स द साइज। इसके अंदर मोर देन 56 स्टेट्स जो हैं वर्ल्ड की, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पर इन्वॉल्व हैं। 34 पोर्ट्स इस पर जो है वो बिल्टअप होनी है इन वेरियस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। 3 to 4 कॉन्टिनेंट्स जो हैं इसमें वो कनेक्ट हो रहे हैं और इसमें 6 डिफरेंट रूट्स हैं, 6 डिफरेंट रूट्स। तो 6 में से एक जो है वो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और बाकी जो 5 रूट्स हैं तो वो उसमें जो है ना पूरा आपका सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं, जो रशिया है, जो यूरोप है, और जो आपका ये साउथ ईस्ट एशिया है, तो इन सारे एरियाज़ के ऊपर जो है ना वो रूट्स हैं जो हैं वो डिफाइन हो रहे हैं। तो वन ऑफ द रूट्स ऑफ द ब्रिज एंड रोड इज सीपैक। तो पहले तो ज़रा सीपैक को ये देख लें कि सीपैक बेसिकली ये किसका चैप्टर है, पूरी बुक देखी जाए पहली बात। तो बुक जो है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की और फ्यूचर वो है। और बाकी ये है कि कोविड के बाद पहले भी और कोविड के बाद भी स्पेशली, तो ये अभी ज़बान ज़द आम पे है कि वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बी, जिसकी ये चेंज हो रही है, जो एक ग्लोबल हैगेमनी थी वेस्ट की, वो डोमिनेशन ख़त्म होकर तो अब ये ईस्ट की तरफ जा रहा है वर्ल्ड। ये सारे मतलब थिंक टैंक्स एंड साइंटिस्ट एंड बड़े बड़े तमाम हर जगह आजकल ये है, यही बात देखी जा रही है, बाई 2030 जो है ना चाइना विल ओवरटेक द वर्ल्ड। ऑलराइट। अब पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग है उसमें हो गया बिल्कुल उसका सेंटर पिवट है। अब सेंटर पिवट का मतलब ये है कि अगर सीपैक की तरक्की होती है, देखिए सेंटर का अगर पिवट चलेगा तो दाएं बाएं हर जगह सब कुछ होगा। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि डाउनटाउन जो है वो नीचे रह जाए और पेरिफेरी जो है ना आबाद हो जाए। आबादी हमेशा बिल्कुल न्यूक्लियस से जो है वो पेरिफेरी पे जाती है। दैट्स इट्स लॉजिकल एक वो है कॉन्सेप्ट है। तो सीपैक इतना इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दैट एंगल कि इसकी सस्टेनेबिलिटी इज लिंक्ड टुवर्ड्स अ $1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट।
तो जो इसको इनिशिएट करने वाले हैं उन हाउ मच आइन कितनी उन्होंने आंखें लगाई हुई होंगी, तो पाकिस्तान को तो बैठे बैठे एक बाउंड्री मिल गई। अब आ जाता है पाकिस्तान का रोल इस पे। बिल्कुल। तो चाइनीज जो कि ग्लोबल सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और फर्स्ट होने जा रही है, और पाकिस्तान जो कि वर्ल्ड की वही 134 तो 140th रैंक के ऊपर एक हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सूरत हाल है, इकोनॉमी तो हमारी थोड़ी सी शायद 34th या 40th रैंक पर है, लेकिन बहुत ही मखदूश हालात हैं हमारे। बिल्कुल सही। तो हम तो वो हैं कि अंधा क्या चाहे दो आंखें, ठीक है। मतलब आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको बैठे बिठाए अगर किसी से आप लिंकअप हो रहे हैं तो आप उसको पॉजिटिव ना लें। मतलब या तो आप इतने अच्छे होते हैं आप खुद मेहनत कर लेते। अच्छा, सेकंडली हम उसमें लोगों को ये शक शुबात है कि चाइनीज आ जाएंगे तो गलबा हो जाएगा, तो हमारे ऊपर छा जाएंगे, तो इंडस्ट्री कर देंगे, हमें निकाल देंगे। यस, अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे, अगर आप अपनी कॉम्पिटेंसीज को बिल्टअप नहीं करेंगे, अगर आप अपने अंदर जो है ना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं लाएंगे, अगर आप उनके साथ जेवीज नहीं करेंगे, अगर आप उनके साथ इश्तराक नहीं करेंगे, अगर आप उसमें, और ये हर लेवल पे, ये पब्लिक सेक्टर के लेवल पे, ये प्राइवेट सेक्टर के लेवल पे, ये एकेडमिक लेवल पे, ये सोशल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे, यूथ के लेवल पे, मीडिया के लेवल पे, एडवोकेसी के लेवल पे, ये हर लेवल पे काम होना मांगता है, जो कि मैं देख रहा हूँ टोटल वैक्यूम है। हनुज दिल्ली दूरस कह के हर एक ने इसको जो है ना वो एंग्लो ओरिएंटल टाइप करके ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी बना के तो छुप के बैठ गए। भाई तो अगर आप छुप के बैठ जाओगे, ऐसे करके बैठ जाओगे, चाइना आ रहा है, चाइना आ रहा है, हमसे नहीं पूछा, हमें नहीं दिया, वो तो आ ही जाएगा। कैन यू स्टॉप इट? यू कैन नॉट स्टॉप इट। द ओनली सोल्यूशन दैट यू हैव है कि सर सैयद अहमद खान ने उस वक्त कहा था ना कि अंग्रेजी सीखो तो ताकि अंग्रेजों के साथ कॉम्पीट करोगे ना। तो यू नीड टू बिल्ड अप योर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जमीन तो आपकी है। आपके खुजदार के साथ एक यहीं से कराची से मैं आपको ले जाऊं तो खुजदार के साथ 160 किलोमीटर अंदर एक जगह है जिसका नाम है डडर करके, वहां से ब्राइट और जिंक की लेड की काने 600 चाइनीज वहां पे जो है ना इस वक्त अपना कैंप लगा के जो है वो आपकी माइनिंग कर रहे हैं। तो वो मैं कहता हूँ चाइनीज वहां से आके जो है ना उधर से माइनिंग करके अपने बीवी बच्चों के साथ वहां पे रह रहे हैं। मैं कराची से अगर आपको ऑफर करूँ आप नहीं मूव करेंगे। चागी में जो है वो माइनिंग सेंटर जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट जो कॉपर के और गोल्ड के रिजर्व्स हैं, तो चाइनीज दे आर एक्सट्रैक्टिंग एंड दे आर टेकिंग इट आउट। तो हमारी जो अपनी पर्सनल पेनिट्रेशन है पाकिस्तानियों की वो मुझे वो नेग्लिजिबल है। मैं यहाँ से अभी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और मारा का चंद दिन पहले, तो सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अदर देन दैट ये पूरी जो कोस्टल बेल्ट है आपकी कराची से लेकर मकरान की पूरी साहिल से लेकर के गवादर तक और मारा और यहाँ से जो जाती है, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैवल। और ये कोस्टल बेल्ट के साथ इतना लंबा ट्रैवल है आपके, मैं कराची वालों के एंटरप्रेन्योर्स की बात करूँ, आपको यूथ की बात करूँ, तो मुझे नज़र नहीं आता कि यहाँ से एक्सकर्शन ट्रिप्स जा रहे हो और यहाँ से लोग मूव कर रहे हो और यहाँ से जो है ना फैसिलिटेशन हो। आप बाहर निकले आपको मोबाइल के सिग्नल नहीं मिलते, आपको ओरिजिनल ब्रांडेड जो है वो फ्यूल नहीं मिलता, ईरान का जाली पेट्रोल मिल रहा होता है और उसके बाद आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो फिर क्या करने की जरूरत है? सर हमारे एंटरप्रेन्योर्स को इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। गवर्नमेंट की जो सपोर्ट आपको चाहिए, लेकिन देखिए गवर्नमेंट की जो बैकिंग और सपोर्ट इज वन थिंग, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना दे आर द वन हु ओपन्स द डोर। एक सेकंड लास्ट में क्वेश्चन आपसे जरूर पूछना चाहूंगा सर, ये कब आ रही है वैक्सीन? कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है? ये तो बड़ा अजीब सवाल पूछ लिया मैंने आखिर में। नहीं लेकिन ये कि क्या कहते हैं लोग, कह रहे हैं कि 2021 में जो है वो शायद वैक्सीन जो है ना, बात ये देखिए ये मेरा पर्सनल ये इसमें मैं बिल्कुल, अब आपने आखिर में तो मैं बिल्कुल अपना पर्सनल, इसके मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं है, आई कांट सपोर्ट इट विद एनी लॉजिक, दिस माय गट लेवल। बात ये है कि आज वैक्सीन दे देंगे ना तो शायद 2 रुपए की बिकेगी, तो जितना डिले करेंगे तो वो उतनी महंगी बिकेगी। तो मैं वो कैसे फिर अफोर्ड होगी, ये भी जरा बताइएगा। फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो वो अफोर्ड जो करने वाला होगा वो अफोर्ड कर लेगा, जो नहीं अफोर्ड करने वाला होगा वो चला जाएगा, मास्क ही लगाएगा, वो फारिग हो जाएगा। तो वैसे भी फिर अब चूंकि अब आप ये दूसरी बात आपने की, तो वैक्सीन मतलब उन्होंने हर एक को तो वैक्सीनेट करके पूरी 7.58 बिलियन पॉपुलेशन को बचाना तो नहीं है ना। मतलब ये तो अच्छा ऐसा कुछ है कि पॉपुलेशन कम हो दुनिया से? ऐसा कुछ बहुत आज का नहीं है। 1973 का डॉक्यूमेंट देख ले, हेनरी किसिंजर का डॉक्यूमेंट है, NSSM 200 के। मैं जब बात करता हूँ लोग कहते हैं ये कॉन्स्पिरेसी आ गई है, फलाना आ गया, गूगल कर ले, लिखा हुआ है NSSM 200 के नाम से डॉक्यूमेंट है ग्लोबली। उसने ये इसको बाद में 1980s में उन्होंने 73 का डॉक्यूमेंट है इसको डीक्लासिफाई किया था। इट वाज अ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, इट्स अवेलेबल PDF फाइल। हेनरी किसिंजर स्टिल ही इज 96-98 इयर्स ओल्ड इन अमेरिका। अच्छा। एंड ही उसकी वो ही जो सबसे बड़ा उनका जो है ना वो एक ऑडिशस जो है उनका पब्लिक ऑफिशियल रह चुके हैं अमेरिका का, हर प्रेसिडेंट के साथ ऑपरेट किया हुआ है। तो द डॉक्यूमेंट स्पीकिंग डॉक्यूमेंटेड फैक्ट कि डीपॉपुलेशन आपने करना है और उन्होंने एरियाज आइडेंटिफाई किए उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, these are the areas who have already been identified back in, I was born in 1971 but in 1973 these regions were identified because कि आपकी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को आज 7.5 बिलियन है
मूविंग फॉरवर्ड 2050 में 10 बिलियन पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड है। अब 10 बिलियन पॉपुलेशन जो है जिस स्केल पे ये ग्रो कर रही है, तो 10 अरब लोग जब 2050 में हो जाएंगे तो 10 अरब को खिलाने के लिए खाना भी तो चाहिए ना, फूड चाहिए ना, गल्ला चाहिए जिंदा रहने के लिए, रहने के लिए जगह चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, सर्वाइव करने के लिए जॉब चाहिए। तो ऑन दी अदर हैंड तो 10 अरब लोगों के हिसाब से मैं आपको मुख्तसर ये बात बता दूं कि 2050 में गल्ला जो है ना, फूड, वो कम हो रहा है। फूड सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न और आबादी बढ़ रही है। तो होगा ये कि यानी कि जितना खाना आज है ना, तो इसका 50% रह जाएगा। राइट राइट। तो अगर आज आप 2 रोटी खा रहे हैं ना, अफोर्ड करके खरीद के, कितने भी पैसे दे के, तो ये 2 रोटी के बाद 1 रोटी रह जाएगी, होगी ही नहीं। तो आबादी इतनी हो चुकी होगी और वो इतना हो चुका होगा। तो क्या मेरा मकसद ये नहीं कि 10 अरब को खत्म कर दो, वैक्सीन के ना दे के मार दो, बट आई एम नॉट द वन जो हु इज कंट्रोलिंग, हु इज गवर्निंग, हु इज इनटू द दिस काइंड ऑफ अफेयर। लेकिन चूंकि आपने कहा कि किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, तो जिसको नहीं मिलेगी तो दैट्स नॉट अ केस। वो जो रिडंडेंट है, जो बूढ़े हैं, जो किसी काम के नहीं है, उनके लिए दोज आर नॉट दैट प्रोडक्टिव। अनफॉर्चुनेटली हम इस तरह की बात कह रहे हैं इन अ लाइटर टोन। तो दीज आर द हार्डकोर फैक्ट्स। लेट्स रिजवान साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में टू द पीपल आउट देयर हु आर वाचिंग यू, लविंग यू, और जो आपको सुनते हैं इतना? थैंक यू वेरी मच। देखिए, बात यह है कि अपॉर्चुनिटी क्राइसिस में है। अगर सब कुछ है लेकिन क्राइसिस में, अपॉर्चुनिटी है ही क्राइसिस। हाँ, ऐसा ही है। अपॉर्चुनिटी अगर सैचुरेशन है ना, और सब कुछ हैप्पी हैप्पी है, यमी यमी है, ऑल गुड है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। वो फिक्स्ड है चीजें, सही, उसमें फर्दर वैल्यू ऐड करने की गुंजाइश नहीं है। तो कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जो हमारी कंट्री है, हमारा रीजन है, तो यहाँ तो एक मतलब वर्जिन आइलैंड्स है ना, अनटैप्ड है। जहां से भी आप उठाओ, आपने एजुकेशन को प्रमोट करना है तो आपको 50% से ज्यादा तो पढ़ा लिखा ही नहीं, आपका 50% आपका जाहिल है। सही। वुमेन एम्पावरमेंट करनी है तो 10% आपकी औरतें जो है ना एजुकेटेड है, बाकी तो वो दे आर इलिटरेट। जेंडर पैरिटी जो है वो आपकी सेकंड लास्ट है वर्ल्ड में। तो मतलब कहने का कहीं से भी आप उठाएंगे तो वो कहते हैं ना, वहां चले जाएं, वहां चले जाएं, वहां चले जाएं, वहां माइग्रेट कर जाएं, वहां अच्छी जगह, वहां ये कर जाएं, वहां चले जाएं। वो दूर के ढोल सुहाने, वहां करने के लिए अब कुछ नहीं है। सही। और स्पेशली कोविड के बाद उन इकोनॉमीज के साथ तो इतना बुरा हशर हो चुका है कि अब तो अपने वालों को भी सस्टेन कर पा रहे। सो कहने का मकसद ये है कि हम जो जगह पे जहाँ बैठे हैं इसको पॉजिटिव लें, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। और क्योंकि ये तो जिंदगी जो है ना आपकी, वही वाली बात है ना, फिर इसको स्पिरिचुअलिटी में ले जाए ना सर। ये तो अब मेरा आना और मेरा जाना आपके कंट्रोल में तो नहीं है। आप कब आए और आप कब गए, दिस इज बियॉन्ड योरसेल्फ। तो व्हाटएवर द पीरियड दैट यू हैव इन योर ओन हैंड, लिव पॉजिटिवली and take the benefit out of the crisis, create opportunity and think of adding positive value. Right. Once you add the positive value, वो रिकोशी होके और घूम के बूमरैंग होके आपके पास पॉजिटिविटी ही लाती है। राइट। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, रियली थैंकफुल टू यू। इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन एंड आई होप कि आप सबने भी बड़ा कुछ सीखा होगा आज से और आज के प्रोग्राम से, बिकॉज इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू आस्क हिम दोज क्वेश्चंस जो कि हम तमाम लोगों के दिमाग में चल रहे होते हैं, एंड दोज वर द वेरी जेनेरिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बट द आंसर्स आई थिंक दैट ही गेव आर ट्रेमेंडसली ऐसे हैं जो कि बड़े हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन मैं यही कहूँगा आखिर में कि हम सबको ही जो है वो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है और मुस्बत सोचना है, और ना सिर्फ सोचना है बल्कि कुछ अमल भी करना है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दुनिया में बातें बहुत हो चुकी हैं, अब सिर्फ अमल की ज़रूरत है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।